join the class. Remaining student will join the class quick fast. Lecture will be started very soon. Okay, let us start the lecture. Share the screen. In last class, we have studied about the various combinational circuits such as the multiplexer, demultiplexer, and designing of the multiplexer and the demultiplexer. Multiplexer में अपन study करी, that multiplexer, that means the multiple accessing, multiple input and single output. And there is the select line. Select line will decide the which one input is directly connected to the output. ठीक है, तो select line will choose the which one D0 to D7, which one output D1, D2, D3 or anyone from D0 to D7 will be connected to the output line Y. Demultiplexer क्या था, just इसका reversible process of multiplexer. इसमें single input line and the multiple output line, and the output line will be decided as according to the select line. ठीक है, ये इसके ऑपरेशन था डीमल्टीप्लेक्सर का. नेक्स्ट आज अपन स्टडी करेंगे क्लास में डिकोडर. डिकोडर इज जस्ट सिमिलर टू द डीमल्टीप्लेक्सर. द डिफरेंस इज दैट इन केस ऑफ डिकोडर देयर आर द मल्टीपल इनपुट एंड मल्टीपल आउटपुट. सो डिकोडर इज डिफाइंड एज द मल्टीपल इनपुट एंड मल्टीपल आउटपुट. ठीक है, MIMO सिस्टम. MIMO सिस्टम दैट मीन्स द multiple input and the multiple output. अब इसकी स्टडी करें. So it consists the n input data and m output data. Okay, where each output line will be activated for only one of the possible combination of the input. इसका मीनिंग क्या है, यहाँ जैसे कितनी इनपुट लाइन है, D0, D1 अप टू Dn-1, तो n कैपिटल N इनपुट लाइन. आउटपुट लाइन क्या है, Y0, Y1 अप टू Ym-1, तो कैपिटल M आउटपुट लाइन. एंड द इनपुट लाइन के कॉम्बिनेशन विल डिसाइड दैट द व्हिच वन इनपुट डेटा इज कनेक्टेड टू द आउटपुट लाइन ऑफ Y. ओके, फर्स्ट पॉइंट. सेकंड वन है, इन डिकोडर n इनपुट एंड m आउटपुट लाइन मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 2 raised to the power n, where n is the input data line. Okay, relation is that relation है n divided by m, the ratio of n and the m is less than equals to 2 raised to the power capital N. Okay, इसका मीनिंग क्या है कि m इनपुट लाइन का और m आउटपुट लाइन का अगर रेशियो निकालें तो ये क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू 2 raised to the power n, where n is the input data line. फर्स्ट वन पॉइंट है, 3 line to 8 line decoder accept the input line and the provide the 8 output line. 3 line to 8 line decoder का मीनिंग क्या रहेगा कि 3 तो इनपुट लाइन है और 8 क्या है, आउटपुट लाइन है. तो D0, D1, D2 तो इनपुट लाइन है, 3 तो इनपुट लाइन है, और Y0, Y2 अप टू Y7 तक 8 आउटपुट लाइन प्रेजेंट है. और किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं इसको, 1:8 decoder also identified as the 1:8 demultiplexer, where the single input line and the 8 output line. इसका मीनिंग क्या है कि 1:8 decoder is working just as a 1:8 demultiplexer. सिंगल इनपुट अपन ले लें और मल्टीपल आउटपुट लें तो एक्चुअली वो कैसे वर्क करता है, डीमल्टीप्लेक्सर की तरह, है ना. तो डीमल्टीप्लेक्सर में जस्ट वर्क एज ए डिकोडर वेयर द सिंगल इनपुट लाइन एंड द 8 आउटपुट लाइन. ठीक है. In comparison of decoder and demultiplexer, decoder does not have data input line. अब ये डिफरेंस आया दोनों में कि अगर demultiplexer और decoder को कंपैरिजन करें तो दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा. तो in case of decoder there is the data, there is no any type of data input line. अब जैसे अपन देखें इसमें demultiplexer में अपन क्या देख रहे हैं
कि सेलेक्ट लाइन है S0 और S1, एनेबल लाइन है E, ठीक है, और दूसरा क्या है, डेटा इनपुट लाइन D in, डेटा इनपुट लाइन प्रेजेंट है, और आउटपुट लाइन Y0, Y1, Y2, Y3 प्रेजेंट। बट इन केस ऑफ डिकोडर, यहाँ सेलेक्ट लाइन S0, S1 है, आउटपुट लाइन Y0, Y3, पर यहाँ डेटा इनपुट लाइन प्रेजेंट नहीं है, यहाँ there is no any type of data input line. So difference is that decoder does not have any type of data input line, whereas demultiplexer will have the data input line. मतलब demultiplexer में data input line present रहेगी, but in case of decoder there is no any type of data input line. इसमें data input line present नहीं होगी। एग्जाम्पल सॉल्व करें। Implement the following function by using 4:16 decoder। 4:16 decoder मतलब 4 इनपुट है, 16 आउटपुट है, और गिवन फंक्शन कैसे है, F1 फंक्शन है समेशन m 1 2 4 7 8 11 12 13। अब समेशन m और m क्या है, स्मॉल है, दैट इज नोन एज द SOP फॉर्म और मीन टर्म्स, दीज आर द मीन टर्म्स, ठीक है। सेकंड वन में क्या दे रखा है, पाई m, स्मॉल m है, दैट इज आल्सो नोन एज द मीन टर्म और SOP फॉर्म। द मीन टर्म्स आर द 10 12 13 एंड 14। सिमिलर F3 में भी क्या है, मीन टर्म है, स्मॉल m है, और मीन टर्म कौन सी है, 1 5 8 एंड 10। तो ये तीन फंक्शन डिजाइन करने हैं, डेराइव करने हैं बाय यूजिंग द 4:16 डिकोडर। अब ये अपन ने 4:16 डिकोडर बनाया, एनेबल लाइन को VCC से कनेक्ट करा, इसमें कोई डेटा इनपुट लाइन नहीं है जैसे डीमल्टीप्लेक्सर में ले रहे थे, यहाँ केवल क्या है, सेलेक्ट लाइन। सेलेक्ट लाइन कितनी है, 4 सेलेक्ट लाइन। सो द सेलेक्ट लाइन विल डिसाइड द विच वन आउटपुट डेटा इज कनेक्टेड और एक्टिवेटेड, ठीक है। तो सेलेक्ट लाइन विल डिसाइड द हाउ मच डेटा आउटपुट डेटा लाइन विल बी प्रेजेंट। अब 4 सेलेक्ट लाइन है तो कितनी होंगी, 2⁴, दैट इज 16 आउटपुट लाइन। 16 आउटपुट लाइन कहां से आएंगी, Y0 से लेके Y15 तक। तो दैट इज द 4:16 decoder, where is the 4 is the select line, 16 is the output line, and there is the no any type of data input line as same as in case of demultiplexer। demultiplexer में data input line present थी, पर decoder में कोई भी data input line present नहीं होगी। Is it clear? अब देखो फंक्शन कैसे डिजाइन करा। फंक्शन F1 जैसे दे रखा है, समेशन m 1 2 4 7 8 11 12 13। तो यहाँ पर ने कनेक्ट करा 1 1 2 4 7 8, सारी लाइंस किससे कनेक्ट करी, F1 वाले और गेट से। और गेट क्यों लगाया अपन ने, क्योंकि SOP फॉर्म क्या करते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट, यानी मेन टर्म्स का क्या करते हैं, एडिशन, सम करते हैं, और सम के लिए कौन सा लॉजिक गेट काम में लेते हैं अपन, और गेट। तो दैट्स व्हाई वी हैव टू यूजिंग द और गेट। सेकंड जैसे F2 के लिए देखें, F2 किससे रिलेटेड है, 10 12 13 14। F2 इज रिलेटेड टू 10, Y10 कनेक्ट करा, 12 Y12 कनेक्ट करा, 13 Y13 कनेक्ट करा, Y14 Y14 कनेक्ट। तो F2 will represent or the summation form of the 10 12 13 14, 10 12 13 14। नेक्स्ट है F3 the 1 5 8 10, Y1 कनेक्ट करा, YF कनेक्ट करा, 8 कनेक्ट करना, और Y10 कनेक्ट कर दिया। तो F3 is related to 1 8 1 5 8 7, 1 5 8 7 था और गेट। इज इट क्लियर? तो इस तरह के एग्जाम में डिकोडर डिजाइन करने के लिए आते हैं कि हाउ वी कैन डिजाइन द डिकोडर by using as according to the given SOP form or given function। एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं। ड्रॉ ए लॉजिक डायग्राम ऑफ 2:4 लाइन डिकोडर यूजिंग नॉर गेट ओनली। नॉर गेट से अपने को डिजाइन करना है, और कौन सा डिकोडर है, क्या कॉन्फ़िगरेशन है, दैट इज द 2:4, दैट इज द 2 इनपुट एंड द 4 आउटपुट। 2 इनपुट कौन से हैं, S0 और S1 सेलेक्ट लाइन। आउटपुट क्या है, Y0 Y1 Y2 Y3। 4 आउटपुट हैं, 2 इनपुट हैं, 4 आउटपुट हैं। डिजाइन किससे अपन कर रहे हैं, नॉर गेट से, ठीक है। डिजाइन अपन किसके रेस्पेक्टिव कर रहे हैं, नॉर गेट के रेस्पेक्टिव। अब इस नॉर गेट में क्या स्पेशलिटी बता रखी है सर्किट डायग्राम में या डिजाइनिंग में, कि ये जैसे अपन ने लॉजिक गेट में पढ़ा था, अगर अपन इनपुट पर बबल लगाएं दैट इज नोन एज द इनहिबिटर, ठीक है। नॉर गेट लिया और नॉर गेट के इनपुट में अपन ने क्या लगा दिया, बबल, सो दैट इज वर्किंग एज ए इनहिबिटर। इनहिबिटर करा तो उस केस में कैसे आउटपुट आएगा इसका,
कि y बार प्लस a बार प्लस b बार का होल बार, तो a बार का बार b बार का बार, दैट इज बार से बार कैंसिल, तो a इंटू बी, तो एंड गेट की तरह वर्क करेगा। दैट मीन्स अगर अपन नॉर गेट को इनहिबिटर कर दें, इनपुट में बबल लगाएं, तो ये कैसे वर्क करने लग जाएगा, जस्ट लाइक ए एंड गेट। तो अपन एंड नॉर गेट को यूज करके अपन डिजाइन करा, इनपुट को इनहिबिटर करें, दैट मीन्स इट इज वर्किंग एज एन एंड गेट। अपन एक और एग्जांपल करते हैं, डिजाइन द full adder using decoder logic by using and NAND gate only। NAND gate only से अपने को इसको डिजाइन करना है, फुल एडर की कॉन्फ़िगरेशन को डिजाइन करना है और विद द हेल्प ऑफ डिकोडर लॉजिक डिजाइन करना है, दैट इज वर्किंग एज एन फुल एडर। ओके, और गेट कौन से इंप्लीमेंट करने हैं, नैंड गेट। ठीक है, तो अपन इसको स्टार्ट करते हैं। सम का एक्सप्रेशन के सम और ये ट्रुथ टेबल देगी। सबसे पहले अपन ने ट्रुथ टेबल बनाई, 3 इनपुट लिए ए बी सी, 3 इनपुट है, कितने कॉम्बिनेशन होंगे, 2⁻³ = 8। 8 कॉम्बिनेशन रहेंगे 0 से लेके 7 तक। कॉम्बिनेशन कैसे लेंगे, 0 0 0 से लेके 1 1 1 तक। अब इनके सम और कैरी का कॉलम बनाया, सम और कैरी के रेस्पेक्टिव 0 + 0 + 0, सम 0 कैरी भी 0, 0 + 0 + 1, सम इज 1 कैरी इज 0, 0 1 0 का करा सम 1 कैरी 0। इस तरह से अपन ये टेबल डिजाइन कर ली। इस तरह की टेबल डिजाइन करने के बाद फाइनल एक्सप्रेशन सम का क्या आया, a एक्सक्लूसिव b एक्सक्लूसिव c। a एक्सक्लूसिव b को ओपन करा तो क्या आएगा, a बार b प्लस a b बार, अगेन एक्सक्लूसिव c। तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या आएगा, a बार b बार c, a b c, a बार b c बार, a b बार c बार। अब इस फॉर्मेशन को, ये इस एक्सप्रेशन को अपन एसओपी फॉर्म में लिखना चाहे, मीन टर्म की फॉर्म में, तो कौन कौन सी फॉर्म आएंगी, जैसे फर्स्ट क्या है, ए पे बार है, बी पे बार है, सी है, तो ये क्या बना 0 0 1, 0 0 1 की वैल्यू क्या आती है 1, ये 1 आ गई। नेक्स्ट क्या है ए बी सी, ए बी सी पे क्या है, ए पे 1, बी पे 1, सी पे 1, दैट इज द 1 1 1, 1 1 1 की वैल्यू क्या रहेगी 7, ये 7 आ गया। दूसरा क्या है ए बार बी सी बार, ए बार का मतलब 0, बी पे 1 और ये 0, तो 0 1 0 0 1 0, दैट इज 2, ये 2 आ गया। लास्ट वाली टर्म क्या है ए बी बार सी बार, दैट इज 1 0 0, 1 0 0 क्या है 4, ये 4 आ गया। तो चारों टर्म आ गई अपनी, और चारों टर्म पे 1 1 प्रेजेंट है। सम के केस को अपन देखें, सम के कॉलम को, तो 1 पे लॉजिक 1 है, 2 पे लॉजिक 1 है, 4 पे है और 7 पे, तो क्या आया 1 2 4 7, 1 2 4 7, जस्टिफाई होगी सम की टर्म। ओके, एसओपी फॉर्म मीन टर्म जस्टिफाई क्या होगी, मीन टर्म फॉर सम। अब कैरी के लिए मीन टर्म अपन आइडेंटिफाई करना चाहें, तो कैरी के लिए एक्सप्रेशन क्या होता है, a इंटू बी, a इंटू सी प्लस b इंटू सी। ठीक है, कैनोनिकल फॉर्म बनाओ उसको। कैनोनिकल फॉर्म कैसे बनेगी, जैसे 3 इनपुट पैरामीटर हैं, यहाँ c की टर्म प्रेजेंट नहीं है, किससे मल्टीप्लाई करते हैं अपन, c प्लस सी बार से, ये मैं लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ। दूसरी टर्म में a और c प्रेजेंट है, b प्रेजेंट नहीं है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, b प्लस b बार से। तीसरी टर्म में क्या है, b और c प्रेजेंट है, a प्रेजेंट नहीं है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, a प्लस a बार से। तो अब इसमें इसको ओपन करें तो क्या आएगा, ए बी बार सी बार, ए बी बार सी, ए बी सी बार एंड ए बी सी। तो फाइनल ये एक्सप्रेशन आ गया कैरी का। अब इसको अपन आइडेंटिफाई करना चाहें, तो ए पे नॉन बार है, तो ये 1 0 0, 1 0 0 की वैल्यू क्या आएगी 4, तो ये 1 0 1, 1 0 1 क्या है 5, ए बार बी सी आएगा, ये ए बार बी सी, ए बार बी सी द a bar bc is the 0 1 1, 0 1 1 is 3, ये 3 आ गया। नेक्स्ट 5 के लिए आ गया, नेक्स्ट 6 के लिए आ जाएगा, नेक्स्ट 7 के लिए आ जाएगा। तो इस तरह से अपन जहां जहां 1 प्रेजेंट है, जैसे ये 1 प्रेजेंट किस पे है 3 पे, तो ये 3 आ गया। नेक्स्ट किस पे प्रेजेंट है 5 पे, तो ये 5 पे आ गया। नेक्स्ट किस पे प्रेजेंट है 6 पे, तो 6 पे आ गया। नेक्स्ट किस पे प्रेजेंट है 7 पे, तो 7 पे आ गया। तो जहां जहां कैरी वाले कॉलम में जहां जहां 1 प्रेजेंट है वहां मीन टर्म होगी, बिकॉज ऑफ दैट मीन टर्म इज रिलेटेड टू लॉजिक 1, जहां 1 प्रेजेंट है दीज आर द मीन टर्म। तो मीन टर्म कैरी वाले कॉलम में कहां पे प्रेजेंट है 3 पे प्रेजेंट है, नेक्स्ट 5 पे प्रेजेंट है, नेक्स्ट 6 पे प्रेजेंट है, नेक्स्ट 7 पे प्रेजेंट है। तो 3 5 6 7।
अब अपन ने क्या है, सम और कैरी के लिए क्या आइडेंटिफाई कर लिया, मीन टर्म्स, कहाँ मीन टर्म प्रेजेंट है। अब इस मीन टर्म के लिए क्या, आउटपुट को कनेक्ट कर दो। तो सिंपली जैसे अपन ने देखा, अब अपन डिकोडर डिजाइन कर रहे हैं, तो 3:8 दैट मीन द 3 इनपुट ABC, इनेबल को VCC से कनेक्ट कर दिया डिकोडर को एक्टिवेट करने के लिए, और 8 क्या है, आउटपुट है। आउटपुट क्या है, Y0 Y2 से लेके Y7 तक। तो आउटपुट कितने हुए 8, इनपुट कितने हुए 3, और ये अपन ने डिजाइन कर। अब जैसे सम के लिए डिजाइन कर लें, तो सम एक्चुअली किससे कंसर्न है, 1 2 4 7। तो Y1 कनेक्ट करा, Y2 कनेक्ट करा, Y4 कनेक्ट करा और Y7 कनेक्ट कर दिया, ये अपना सम के लिए आ गया। नेक्स्ट कैरी के लिए क्या है, 3 Y3 कनेक्ट करा, Y5 कनेक्ट करा, Y6 कनेक्ट करा और Y7 कनेक्ट करा, ये कैरी के लिए एक्सप्रेशन आ गया। अपन कौन सा गेट काम में डिजाइन किससे करना है, नैंड गेट से, इसलिए अपन ने नेट गेट ले लिया। अब इसमें एक और चीज अपन देख रहे हैं सर्किट डायग्राम में, कि इस नैंड गेट को भी इनहिबिटर कर रखा है, यानी इनपुट किससे बबल बना रखे हैं, तो दैट इज द इनहिबिटर। तो अब नैंड गेट के इनहिबिटर करते हैं, तो उस केस में ये कैसे वर्क करेगा। अब जैसे इसमें देखो, ये नैंड गेट था, इसके इनपुट को क्या अपन ने इनहिबिटर करा, इनपुट दोनों इनपुट को इनहिबिटर करा, तो उस केस में क्या आया, y क्या आया, a बार इंटू बी बार का होल बार। तो a बार का बार प्लस b बार का बार, बार से बार कैंसिल, दैट इज द a प्लस b और गेट। तो इसका मीनिंग क्या निकला कि अगर अपन नैंड गेट को इनहिबिटर कर दें, इनपुट पर बबल लगाएं, तो ये एक्चुअली किस तरह से वर्क करने लगेगा, और गेट की तरह। और एसओपी में अपन क्या करते हैं, और गेट ही काम में लेते हैं, जैसे इसमें ले रहे थे, यहाँ ये और गेट ले रहे थे, फंक्शन को डिजाइन कर रहे थे, एसओपी फॉर्म ही था, ये एसओपी फॉर्म ही है। एसओपी फॉर्म को अपन ने डिजाइन करा, तो एक्चुअली आउटपुट में कौन सा लॉजिक गेट अपन काम में लेते हैं, और गेट। तो यही सेम यहाँ अप्रोच अपन ने काम में ली कि नैंड गेट से तो डिजाइन करा, वो क्वेश्चन बाउंड कर दिया है कि आपको नैंड गेट से डिजाइन करना है, पर अपन इनपुट पे इनहिबिटर कर देंगे, तो एक्चुअली ये कैसे वर्क करने लग जाएगा, और गेट की तरह। तो आंसर अपना जस्टिफाई हो जाएगा सम और कैरी के लिए। तो ये दैट इज वर्किंग एज एन सम, इट इज आल्सो वर्किंग एज एन द कैरी। तो सम और कैरी के लिए अपन इस तरह से डिकोडर डिजाइन कर सकते हैं। तो डिकोडर इज द 3:8 डिकोडर where the 3 input ABC are 8 output, Y0 Y7 ये 8 आउटपुट, और ये सम और कैरी के लिए अपन ने सर्किट या डिकोडर डिजाइन कर दिया। ओके, तो आज की क्लास में अपन ने स्टडी करी कि अपन डिकोडर कैसे डिजाइन कर सकते हैं ना। लास्ट वाली क्लास में अपन ने डिजाइन करी थी मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर डिजाइन कैसे करते हैं। आज वाली क्लास में डिकोडर अपन ने करा। डिकोडर भी एक्चुअली एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है, आरटी के एग्जाम में आ जाता है। तो डिकोडर का सिंपल सा सर्किट है, सिंपल सा डिजाइनिंग अप्रोच है, और सिंपली अपने को क्या करना है, जो भी गिवन फंक्शन है, जो भी एक्सप्रेशन गिवन है क्वेश्चन में, सबसे पहले अपने को क्या बनाना है, उसकी एसओपी फॉर्म या मीन टर्म फॉर्म, और मीन टर्म फॉर्म बनाने के बाद फिर अपने उसको डिकोडर में डिजाइन कर देंगे। तो अब जो मैंने बुक्स तुम्हें बता रखी हैं उनके पीडीएफ से बेटा इनके सॉल्व एग्जांपल सॉल्व करो, जो किससे रिलेटेड हो, मल्टीप्लेक्सर से रिलेटेड हो, डीमल्टीप्लेक्सर से रिलेटेड हो और डिकोडर से रिलेटेड हो। तो इन तीनों पे स्पेशली फोकस करना है, इनको समझना है, उनके सॉल्व एग्जांपल सॉल्व करने हैं। और भी कोई इश्यू या कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे डिस्कशन करना है, ठीक है। ओके, थैंक यू।